Good morning, everybody. In the last video, we have studied about the different properties of the different state of the matter, like was the intermolecular force of attraction, intermolecular spaces, diffusion. These are the few important properties that we have discussed in our last video. Okay. So today in this video, we are just going to start the classification of a matter on the basis of their physical state. है ना? So in the last video I told you that we are just classifying the matter on the basis of their physical properties and chemical properties. So today I am just going to do the classification on the basis of the physical property, and on the basis of their chemical properties, this we are going to read in the chapter number 2. Okay, is matter around us is pure, in that chapter. So today I am just going to start with the some of the division that we have classified, that the state of the matter on the basis of their physical state, they are the solid, liquid and gases. These we are knowing from our previous knowledge also. Okay, so what are the difference between the solid, liquid and gases? तो basically solid, liquid and gases में क्या basic differences होगा, that we are going to see today. Okay, so just starting with the very first one, that is the solid. Okay, so this figure you are able to see that this is a kind of a solid. So this is simply atomic or the molecular structure of the solid. ये आपको पता है कि एटम्स और जो एटम्स या मॉलिक्यूल सॉलिड के केसेस में दे आर वेरी टाइटली पैक, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. ओके, सो कीपिंग दिस फिगर इन द माइंड, व्हाट द प्रॉपर्टीज वी कैन राइट आवरसेल्फ. सी, सॉलिड्स हैव देयर फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम. इफ़ यू आर गोइंग टू सी एनी ऑफ द सॉलिड, अगर आप कोई भी आप सॉलिड देखते हो तो उस सॉलिड का आप देखोगे डेफिनेटली एक फिक्स शेप, फिक्स साइज और फिक्स वॉल्यूम होता है ना. जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये आप देख सकते हो कि पेन है, तो इस पेन का एक डेफिनेट शेप, साइज और वॉल्यूम है जो कभी चेंज नहीं कर सकता है ना. तो वट एवर द सॉलिड यू सी, दे आर हैविंग देयर फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम. ओके, नाउ सॉलिड्स हैव द लीस्ट और द मिनिमम इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस. अब देखो इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस मैंने क्या बताया था, द स्पेस बिटवीन द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स. मतलब यहाँ पे जो भी आपके पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच का जो स्पेस है वो. तो सॉलिड केस में दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. इन द केस ऑफ सॉलिड द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. देयरफॉर वी कैन से दैट इन द केस ऑफ द सॉलिड द इंटरमॉलिकुलर स्पेस इज वेरी लीस्ट. ओके, नाउ इंटरमॉलिकुलर space and intermolecular force of attraction are just vice versa of each other. They are just reciprocal of each other. We have discussed in our last video, है ना, कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर स्पेसेस जितने कम होंगे, स्पेसेस अगर कम होंगे तो उनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और पार्टिकल्स अगर दूर हो जाएंगे तो अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन विल डिक्रीज. सो इन दिस फिगर यू कैन सी द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. सो इफ द पार्टिकल्स, ऑल पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो 100% वी कैन से द इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी हाई. सो सी हियर, solids have the maximum intermolecular force of attraction. Why? Because the atoms and molecules are very close to each other, and intermolecular force of attraction is inversely proportional to the intermolecular spaces. That's why if space will be less, force of attraction will be high. Okay, now next, solid do not show the diffusion, but if it will show, then up to a least extent, है ना. solid के केस में diffusion बिल्कुल भी नहीं होता. diffusion मैंने क्या बताया था, intermixing of पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. आप देखो सॉलिड के केस में यहाँ पे बिल्कुल भी आप देख सकते हो कि स्पेस नहीं है. तो जब स्पेस यहाँ पे नहीं है तो दूसरा एटम या मॉलिक्यूल्स आएगा, उसको तो यहाँ पे आने का जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है. तो जब दूसरा एटम और मॉलिक्यूल यहाँ पे अंदर नहीं आ सकता है, इट मीन्स सॉलिड विल नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन. बट ऑल्दो वी आर हैविंग द सम डिफरेंट काइंड ऑफ सॉलिड, दे आर कॉल्ड द पोरस सॉलिड. जैसे आप देखोगे ब्रिक्स ले लो, जो ईंटें हमारे पास आती है जिससे हम लोग घर बनाते हैं, ईंटें या फिर स्पंज आते हैं, तो दीज आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ ए सॉलिड, बट दे आर कैटेगराइज इन सम डिफरेंट वेज. उसको थोड़ा एक अलग कैटेगरी में रखा गया है ना, बिकॉज दे आर हैविंग लॉट ऑफ एयर होल स्ट्रैप इनसाइडेड. मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आप देखोगे दे आर द पोरस सॉलिड, दे आर कॉल्ड द पोरस सॉलिड बिकॉज दे कंटेन लॉट ऑफ एयर ट्रैप इनसाइड दिस, है ना. जैसे स्पंज है, स्पंज को प्रेस करोगे तो उसके अंदर जितने भी एयर ट्रैप होते हैं वो बाहर निकल सकते हैं, है ना. तो these type of solid, if you are going to just put in the water, definitely they are going to soak the water, so they will show some property of diffusion, है ना.
नाउ लिसन नेक्स्ट, सॉलिड्स आर जनरली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। अब कोई भी आप सॉलिड को लेते हो तो कोई भी सॉलिड, जैसे ये सॉलिड है, मैं इसको कितना भी प्रेस करने की कोशिश करूंगा ये बिल्कुल भी प्रेस नहीं होगा, मतलब इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी सॉलिड जो है उसको हम लोग बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक कर सकता है बट इट नॉट गोइंग टू कंप्रेस नहीं हो सकता है ना। एंड सॉलिड्स हैव द हाई डेंसिटी, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, दीज आर कॉल्ड द कि सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। एज वी नो डेंसिटी मतलब क्या होता है, आप ये वर्ड्स कॉमनली सुने होंगे कि दिस एरिया इज़ हाईली डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब इस एरिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हाईली डेंसली पॉपुलेटेड, है ना। तो यहाँ पे देखोगे एक छोटे से स्पेस में जो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स अगर बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब सॉलिड का जो डेंसिटी होगा इट विल बी वेरी हाई। तो दैट्स व्हाई यू कैन से द सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट, सिंस यू सी द सॉलिड्स आर वेरी रिजिड मतलब ये बहुत हार्ड होते हैं। तो इफ़ दे आर रिजिड एंड हार्ड सो द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज एंड टाइटली पैक। तो मॉलिक्यूल्स अगर क्लोज और टाइटली पैक है देयरफॉर वी कैन से दे कैन नॉट फ्लो। तो जो भी हमारे पास सॉलिड्स होते हैं वो बिल्कुल भी फ्लो नहीं करते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट इज द लिक्विड। Now, in the case of the liquid, you know that the atoms and molecules are little bit far away from solid. अगर solid से compare करेंगे तो जो atoms और molecules थोड़े दूर होते हैं, है ना। So therefore we can say the liquids do not have their fixed shape but have their fixed volume. कोई भी जो लिक्विड होता है उसका देखोगे उसका कोई भी फिक्स शेप साइज नहीं होता है बट दे हैव द डेफिनेट वॉल्यूम। अब सपोज करो कि आपके पास 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है, तो अगर उसको आप बॉटल में रखोगे तो इट विल टेक द शेप ऑफ द बॉटल। इफ़ यू जस्ट कीप इन द अनदर कंटेनर इट विल टेक द शेप ऑफ दैट कंटेनर, है ना। तो यू कैन सी दैट द शेप ऑफ दैट लिक्विड इज गोइंग टू चेंज कंटिन्यूसली, दे विल जस्ट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच यू आर जस्ट गोइंग टू कीप दैट लिक्विड। ओके, बट द थिंग इज दैट कि क्वांटिटी ऑफ दैट लिक्विड इज सेम, जो भी क्वांटिटी है उस लिक्विड का वो बिल्कुल सेम है। अगर आपने 1 लीटर लिया है आप किसी भी बर्तन में रखोगे तो वो 1 लीटर का 1 ही लीटर रहेगा, वो चेंज नहीं कर सकता है। ओके, सो वी कैन से दैट दे हैव देयर फिक्स्ड वॉल्यूम बट डू नॉट हैव देयर फिक्स्ड शेप, दे विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर गोइंग टू बी केप्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, लिक्विड हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देन द सॉलिड बट लेस देन द गैसेज। अब सॉलिड के केस में आप देखो कि ये जो स्पेस है वो पहले से सॉलिड के केस से अगर कंपेयर करते हैं तो लिक्विड के केस में जो स्पेस है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुका है ना। तो लिक्विड्स हैव मोर स्पेसेस देन सॉलिड्स बट लेस देन द गैसेस, क्योंकि गैसेस में मॉलिक्यूल्स और दूर चले जाते हैं। तो लिक्विड के केस में जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अगर स्पेस के बारे में बात करूँगा तो सॉलिड से ज़्यादा हैं बट गैसेस से थोड़े कम होंगे। ओके, ना नेक्स्ट, लिक्विड हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर हो गए, डिस्टेंस इंक्रीज कर गया है तो फोर्स तो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इफ द डिस्टेंस हैज इंक्रीजेज डेफिनेटली द फोर्स विल डिक्रीज। ओके, द नेक्स्ट, लिक्विड शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन बट नॉट ऑलवेज। अब देखो लिक्विड का जो प्रॉपर्टी होता है कि दे विल शो द डिफ्यूजन। अब देखो कि लिक्विड के केसेस में बहुत ज़्यादा स्पेसेस हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पेसेस हैं तो इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आराम से दूसरे एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो आराम से यहाँ पे रह सकती है। तो इसका मतलब लिक्विड जो होता है वो बिल्कुल भी डिफ्यूजन शो करेगा बट नॉट ऑलवेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो आपके पास अगर 2 लिक्विड्स हैं, अगर उन दोनों लिक्विड्स को आप मिक्स एक दूसरे में मिलाते हो तो आराम से वो मिक्स हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाटर है, वाटर तो लिक्विड है, और आप लेमन जूस ले लो, आप नींबू को कट करके उसको स्क्वीज़ करके उसका अगर जूस निकालते हो तो दैट विल बी द लेमन जूस। अगर आप वाटर के साथ उसको मिक्स करोगे तो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाता है ना। मीन्स दे विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। और दूसरी बात ये भी है कि इफ़ यू आर गोइंग टू जस्ट पुट द शुगर इन दैट वाटर एंड जस्ट स्टिर इट, है ना, पानी में आप चीनी को डाल करके स्टिर करोगे तो देखोगे कि वो जो शुगर है वो आराम से डिसॉल्व हो जाता है, बिकॉज यू विल सी देयर इज मोर स्पेसेस इन लिक्विड। और लिक्विड में अगर स्पेसेस है तो शुगर पार्टिकल्स यहाँ बिल्कुल बीच बीच में आ सकते हैं। तो देयरफॉर वी कैन से दैट द लिक्विड शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन बट नॉट ऑलवेज। अब देखो बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। अगर आप ऑयल और वाटर को एक साथ रखोगे तो वो कहीं मिक्स नहीं होंगे, मीन्स दे विल नॉट शो द डिफ्यूजन। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर कि लिक्विड शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन बट नॉट ऑलवेज। इट्स sometime it depend upon that property of that liquid that you are going to use together. Okay, now next,
लिक्विड आर जनरली इनकम्प्रेसिबल नेचर। अब लिक्विड जो होते हैं वो बिल्कुल भी इनकम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल कैसे बता सकता हूँ, देखो आप एक नॉर्मल एक सिरिंज ले लो, है ना, सिरिंज के सामने का जो नीडल होता है उसको रिमूव कर लो और उसमें आप क्या करो, पूरा वाटर फिल कर लो। वाटर फिल करने के बाद उसके माउथ को लॉक करके आप पीछे से प्रेशर डालोगे तो देखो यू आर नॉट एबल टू कंप्रेस इट, उसको आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे। जब उसके अंदर पूरा लिक्विड या वाटर, आप कोई भी वाटर को फिल कर लो और फिर कंप्रेस करो सिरिंज को, तो आप देखो बिल्कुल भी आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे। तो वी कैन से दैट द लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। नाउ लिक्विड हैव लेस डेंसिटी देन सॉलिड। अब देखो लिक्विड केसेस में थोड़े जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स थोड़े फार अवे हैं, फार अवे फ्रॉम ईच अदर, सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट दे हैव वेरी लेस डेंसिटी, ओके, लेस डेंसिटी देन सॉलिड। लिक्विड जनरली फ्लो ईजिली। तो लिक्विड जो होते हैं वो हम लोग उसको, लिक्विड को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड मतलब दे कैन फ्लो ईजिली। तो लिक्विड हैज़ द प्रॉपर्टी दैट दे कैन फ्लो ईजिली, ओके। नाउ द थर्ड इन द गैसेज. Now you see the gases. In the gases, the atoms are very very far away from each other. So we can say the gases have neither a fixed shape nor a fixed volume. अब gases का ना फिक्स शेप, साइज, ना वॉल्यूम उसका बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता, वो सब कुछ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं. डू नॉट हैव देयर फिक्स शेप एंड नॉट हैव देयर फिक्स वॉल्यूम. ओके. नाउ गैसेज हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. आप देख सकते हो कि गैसेज के केस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर है एक दूसरे से. इसका मतलब दे हैव द मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. नाउ गैसेज हैव द लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब स्पेस अगर बहुत ज़्यादा हो चुका है तो स्पेस अगर बहुत ज़्यादा हो चुका है तो 100% जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो डिक्रीज करेगा, बिकॉज ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके. नाउ थर्ड, गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट. अब देखो गैसेज में तो इतना ज़्यादा स्पेस है, जब स्पेस बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारे इसमें पार्टिकल्स आ सकते हैं. तो इसका मतलब गैसेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन का प्रॉपर्टी शो करता है. जैसे नॉर्मली आप देखोगे एयर इज़ अ मिक्सचर. अब एयर में देखो बहुत तरह के गैसेज डिजॉल्व होते हैं. अगर आप नॉर्मली एयर में देखोगे तो ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, बहुत तरह के गैसेस प्रेजेंट हैं. तो इट मीन्स द गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब बहुत ज़्यादा वो प्रॉपर्टी शो करता है. ओके. गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर. अब गैसेस को हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं. अब देखोगे वही सिरिंज आप ले लो, है ना, तो सिरिंज में आप इस बार वाटर को रिमूव करके नॉर्मली एयर रखो. अब जब एयर रख करके उसके माउथ को क्लोज करके पीछे से आप इसको कंप्रेस करोगे तो यू विल सी दैट यू आर एबल टू कंप्रेस दैट सिरिंज अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट. उसको बहुत ज़्यादा आप कंप्रेस कर सकते हो. सो वी कैन से दैट द गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर. नाउ द गैसेज हैव लीस्ट डेंसिटी. मतलब जो गैसेज होता है उसका डेंसिटी बहुत कम होता है. गैसेस का डेंसिटी बहुत कम है क्योंकि देखो पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर है, तो इसका मतलब बहुत दूर है तो डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा. एंड गैसेस कैन फ्लो ईजिली. और जो भी गैसेस होते हैं वो बिल्कुल भी लिक्विड के जैसा आराम से फ्लो कर सकते हैं. तो दैट्स वाई द लिक्विड्स एंड द गैसेज बोथ कैन फ्लो ईजिली. लिक्विड भी फ्लो कर सकता है और गैसेज भी फ्लो कर सकता है. तो दैट्स वाई वी कैन कंबाइंड, वी आर जस्ट सेइंग द वर्ड एज अ फ्लूइड. मतलब जो चीज़ फ्लो कर सकता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं फ्लूइड. तो लिक्विड एंड गैसेज बोथ विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड नेचर. ओके. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर. थैंक यू वेरी मच.